In this lecture, we are starting lipids. Before starting this video, please like, share and subscribe this video for better updates. Now start lipids. Lipids are the heterogeneous group of organic compounds. यानी कि lipids में lipids form होता है heterogeneous organic group के compounds से, which is insoluble in water and soluble in non-polar organic solvent. यानी कि lipids water में इनसोल्यूबल होते हैं और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं. दे नेचुरली ऑकर इन मोस्ट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज एज अ सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, इंसुलेशन एंड हार्मोन्स. यानी कि जो लिपिड्स होते हैं वो प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स में ऑकर होते हैं और they used in cell membrane components, energy storage molecule, insulation and hormones. Now lipids are further divided into fatty acids and glycerides. Fatty acids are further divided into saturated and unsaturated fatty acids. Glycerides are further divided into neutral glycerides and phosphoglycerides. And the third and fourth class is non-glycerides lipids and complex lipids. Complex lipids are further divided into lipoprotein, and non-glyceride lipids are further divided into waxes, sphingolipids, steroids, and sphingolipids are further divided into sphingomyelins and glycolipids. Then classification of lipids. Lipids can be classified into two major classes. First, non-saponifiable lipids and saponifiable lipids. First, non-saponifiable lipids. A non-saponifiable lipids cannot be broken up into smaller molecule by hydrolysis, which include triglyceride, waxes, phospholipids and sphingolipids. यानी कि जो ये नॉन सैपोनिफाइबल लिपिड्स है ये स्मॉल मॉलिक्यूल में डिवाइड नहीं होते बाय हाइड्रोलाइसिस. Now, the second class is saponifiable lipids. A saponifiable lipids contain one or more ester groups, allowing it to undergo hydrolysis in the presence of acid, base or enzyme. यानी कि जो saponifiable lipids है उनमें एक या एक से ज़्यादा ester groups present होते हैं तो वो हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस और एंजाइम्स. नॉन saponifiable lipids include steroids, prostaglandins and terpenes. Now, types of lipids. Within these two major classes of lipids, there are several specific types of lipids important to live, including fatty acids, triglycerides, glycerophospholipids, sphingolipids, and steroid. These are broadly classified as the simpler lipids and complex lipids. First, simpler lipids: ester of fatty acids with various alcohols. Fats: ester of fatty acids with glycerol. Oil are fats in the liquid state. Now, second one is waxes, ester of fatty acids with high molecular weight monohydric alcohols. यानी कि सिंपल लिपिड्स फॉर्म होते हैं ester of fatty acids एंड अल्कोहल से, एंड फैट्स फॉर्म होते हैं esters of fatty acid एंड ग्लिसरॉल के मिक्सचर से. ऑयल एंड फैट्स इन द लिक्विड स्टेट, यानी कि जो ये ऑयल एंड फैट है वो लिक्विड स्टेट में होता है. नाउ वैक्सेस, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड हायर मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को मिलाकर वैक्सेस तैयार किए जाते हैं. नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू अल्कोहल and a fatty acid. First, phospholipids, lipids containing in addition to fatty acids and alcohol a phosphoric acid residue. They frequently have nitrogen containing bases and other substituents. Complex lipids form होते हैं ester of fatty acids plus alcohol plus fatty acids. Now phospholipids are formed by addition of fatty acids, alcohol and phosphoric acid residue. They frequently have nitrogen containing bases, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं एंड अदर सब्सटीट्यूएंट. फॉर एग्जांपल, इन ग्लिसरोफॉस्फेट्स द अल्कोहल इज ग्लिसरॉल एंड द स्पिग्नोफॉस्फोलिपिड्स द अल्कोहल इज स्पिग्नोसिन. नेक्स्ट, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स कंटेनिंग फैटी एसिड्स, स्पिग्नोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म होता है फैटी एसिड, स्पिग्नोसिन और कार्बोहाइड्रेट से. एंड थर्ड वन इज अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, लिपिड्स सच एज सल्फोलिपिड्स एंड अमीनोलिपिड्स. Lipoproteins may also be placed in this category. Next is precursors and derived lipids. These includes, यानी कि derived lipids includes fatty acids, glycerols, steroids, other alcohols, fatty aldehydes and ketone bodies, hydrocarbons, lipid soluble vitamins and hormones. Because they are uncharged acylglycerides, cholesterol and cholesterol esters are termed as neutral lipids. क्योंकि जो लिपिड्स है वो अनचार्ज होते हैं इसलिए उन्हें न्यूट्रल लिपिड्स कहा जाता है. दीज कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. जो डिराइव्ड लिपिड्स है वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के हाइड्रोलाइसिस से फॉर्म होते हैं.
Some of the different types of lipids are described below in detail. First type is fatty acids. Fatty acids are carboxylic acids often with long aliphatic tails, either saturated or unsaturated. यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं विथ लॉन्ग एलिफेटिक टेल, एंड वो फर्दर डिवाइड होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में. तो हम देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. When a fatty acid is saturated, it is indication that there are no carbon-carbon double bond. यानी कि saturated fatty acids में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं होता. The saturated fatty acids have higher melting point than unsaturated acids. यानी कि जो saturated fatty acids का जो melting point है वो higher होता है than unsaturated acids. Second type of fatty acids is unsaturated fatty acids. If a fatty acid has more than one double bond, then this is an indication of that इट इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. यानी कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड्स कंटेन्स एन इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एंड आर अनब्रांच्ड. यानी कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनमें कार्बन के इवन नंबर की ब्रांच होगी और वो अनब्रांच होगी. अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑन द अदर हैंड हैव सिक्स डबल बॉन्ड्स दैट क्रिएट द किंक in their structure which doesn't allow them to group their molecules in straight rod like shape. यानी कि फैटी एसिड्स में सिस डबल बॉन्ड होने के कारण जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट रॉड शेप नहीं होता, क्योंकि उस स्ट्रक्चर में किंक यानी कि थोड़ा सा बैंड हो जाता है स्ट्रक्चर, उसे हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं. नाउ वैक्सेस आर एस्टर्स formed from long chain of carboxylic acid and long alcohols. यानी कि वैक्सेस से एस्टर होते हैं जो फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स के लॉन्ग चेन से. वैक्सेस आर सीन ऑल ओवर इन नेचर. यानी कि वैक्सेस नेचर में कहीं भी मिलते हैं. द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स हैव वैक्सी कोटिंग विच में प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड स्मॉल प्रेडेटर्स. यानी कि जो पत्तों पे और फ्रूट्स पे जो वैक्सी कोटिंग होती है वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है डिहाइड्रेशन से और स्मॉल प्रेडेटर्स से. द फेदर्स ऑफ बर्ड्स एंड द फर ऑफ सम एनिमल्स हैव सिमिलर कोटिंग विच सर्व एज अ वाटर रिपेलेंट. यानी कि जो बर्ड्स के फेदर्स पे जो कोटिंग होती है वैक्सेस की वो प्रिवेंट करती है, वाटर रिपेलेंट एज अ वर्क करती है. और नाउ कार्नेवा वैक्स इज वैल्यूड फॉर इट्स टफनेस एंड वाटर रेजिस्टेंस. कार्नोवा वैक्सेस का एक टाइप है जो टफ है और वाटर रेजिस्टेंस है. देन नेक्स्ट क्लास इज फॉस्फोलिपिड्स. मेम्ब्रेन्स आर चिपली मेड अप फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स विच आर phosphoglycerols. Triglycerols and phosphoglycerols are similar. However, the terminal OH group of phosphoglycerol is esterified with phosphoric acid instead of fatty acids, which leads to formation of phosphatic acid. यानी कि ट्राइग्लिसरॉल्स एंड फॉस्फोएसिलिक ग्लिसरॉल्स सिमिलर होते हैं, बस फॉस्फोग्लिसरॉल्स का टर्मिनल OH ग्रुप एस्टेरिफाइड होता है फॉस्फोरिक एसिड से इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड्स, विच लीड्स फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड. यानी कि उसकी वजह से फॉस्फेटिडिक एसिड फॉर्म होता है. द नेम फॉस्फोलिपिड कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट फॉस्फोग्लिसरॉल आर लिपिड्स दैट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप. यानी कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेरॉइड्स. Following is the structure of steroid. The chemical messengers in our bodies are known as hormones, which are organic compounds synthesized in glands and delivered by the bloodstream to certain tissues in order to stimulate or inhibit desired process. यानी कि हार्मोन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एज अ केमिकल मैसेंजर एक्ट करते हैं और वो ग्लैंड्स में सिंथेसाइज्ड होते हैं और वाया ब्लड स्ट्रीम वो डिलीवर्ड होते हैं टिश्यू पर और वो उनको स्टिमुलेट और इनहिबिट करते हैं फॉर डिजायर्ड प्रोसेसेस. स्टेरॉइड्स आर अ टाइप ऑफ हार्मोन्स विच इज यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर टेट्रासाइक्लिक स्केलेटन. यानी कि स्टेरॉइड एक हार्मोन है जो आइडेंटिफाई किया जाता है उसके टेट्रासाइक्लिक स्केलेटन की वजह से, कंसिस्टिंग ऑफ 3 फ्यूज्ड 6 मेम्ब्रेन एंड 1 5 मेम्ब्रेन रिंग. उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है, उसमें 3 फ्यूज्ड 6 मेम्ब्रेन रिंग्स होती है और 5 मेम्ब्रेन एक रिंग होती है एज शोन इन डायग्राम अबव. The 4 rings are designed as A, B, C and D as noted in blue, and the numbers is in red represent the carbons. Let's discuss about cholesterol. Cholesterol is waxy-like substance found only in animal source food. यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो वैक्सी लाइक सब्सटेंस होता है और वो एनिमल्स के फूड सोर्स में फाउंड होता है. ट्राइग्लिसराइड्स LDL, HDL, VLDL are different types of cholesterol found in blood cells. यानी कि ट्राइग्लिसराइड LDL, HDL, VLDL
ये जो कोलेस्टेरॉल है वो ब्लड सेल्स में फाउंड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, कोलेस्टेरॉल इज एन इम्पोर्टेंट लिपिड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन. It is a sterol, which means that cholesterol is a combination of steroid and alcohol. यानी कि जो कोलेस्टेरॉल है वो सेल्स मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और वो कॉम्बिनेशन होते हैं स्टेरॉइड और अल्कोहल का. इन ह्यूमन बॉडी कोलेस्टेरॉल इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर. इन ह्यूमन बॉडी में कोलेस्टेरॉल लिवर में सिंथेसाइज होता है. थर्ड पॉइंट, these compounds are biosynthesized by all living cells and are essential for structural components of cell membrane. यानी कि ये जो कोलेस्ट्रॉल के कंपाउंड्स है वो बायोसिंथेसाइज्ड किए जाते हैं बाय लिविंग सेल्स एंड आर इसेंशियल फॉर देयर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. फोर्थ पॉइंट, इन द सेल मेम्ब्रेन द स्टेरॉइड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स रिजिड हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर. यानी कि सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉइड रिंग हाइड्रोफोबिक रिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है दैट हेल्प्स बूस्ट द रिजिडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन की रिजिडिटी इंक्रीज करता है. विदाउट कोलेस्टेरॉल द सेल मेम्ब्रेन वुड बी टू फ्लूइड. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अदर स्टेरॉइड्स. यानी कि जो कोलेस्टेरॉल है वो बेस है फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर स्टेरॉइड्स इंक्लूडिंग द 6 हार्मोन्स एस्ट्रेडियोल एंड टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज अदर स्टेरॉइड्स सच एज कॉर्टिसोल एंड विटामिन डी. यानी कि जो कोलेस्टेरॉल है वो 6 हार्मोन्स एस्ट्रेडियोल एंड टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल एंड विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए एज अ बेस यूज किया जाता है. नाउ द बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ लिपिड्स इंक्लूड स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. यानी कि लिपिड्स एनर्जी स्टोर करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड द रोल ऑफ इंट्रासेल्युलर एंड इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग events involving lipids such as glycerophospholipids, pignomyelin, phosphatidyl X and inositol derivatives. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe this video for better updates.